फ्रेंड्स, ऑन द स्पॉट वीडियो सीरीज में मैं नंदिनी त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी मैं आपके सामने ऐसी भी वीडियोस पेश करती हूँ जहाँ मैं कोई जगह पे गई हूँ और कोई कलाकार मुझसे अचानक मिल जाते हैं, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो आज मैं पृथ्वी थिएटर की ओर जा रही हूँ और पृथ्वी थिएटर मुंबई का बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, थिएटर प्लेस है, जहाँ बहुत ही यूनिक प्रकार के ड्रामा और म्यूजिकल्स होते रहते हैं। तो आज मैं एक प्ले देखने जा रही हूँ, सेम बट डिफरेंट। इट्स अ म्यूजिकल प्ले। तो मैं वहाँ जो उनके कलाकार हैं उनसे भी आपकी थोड़ी सी मुलाकात करवाऊंगी, और उससे पहले पृथ्वी थिएटर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप उसका जो दृश्य है, नज़ारा है, वहाँ का एम्बियंस है, वो इतना प्यारा है कि आपको भी बहुत मजा आएगा। वहाँ अब थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 दिन से, और 5 दिन चलेगा। तो वहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार के ड्रामा और म्यूजिकल्स देखने को मिलता है। तो अगर आप बम्बई आओ तो पृथ्वी थिएटर की मुलाकात जरूर करना। और पहले मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ पृथ्वी थिएटर की, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ, और बाद में हम मिलेंगे सेम बट डिफरेंट की जो कलाकार है जाह्नवी श्रीमांकर, जो हमारी गुजराती की बहुत ही अच्छी सिंगर है, जो ढोलीडा से बहुत फेमस हो गई है ज्यादा, ढोलीडा सॉन्ग गंगूबाई काठियावाड़ी का। तो ये उसमें लीड रोल कर रही है, तो हम उनसे भी मिलेंगे। पृथ्वी थिएटर की गली से हम गुजर रहे हैं, आप ये गली देख सकते हैं, और यहाँ से राइट टर्न लेके ये हम पृथ्वी थिएटर पहुँचे हैं। थिएटर फेस्टिवल होने की वजह से बहुत सारी रोशनी की गई है, और ये पूरा जो माहौल है वो बहुत ही प्यारा सा है। ये पीछे जो दिख रहा है वो पृथ्वी कैफ़े है, ये पृथ्वी थिएटर की बुक शॉप है, वहाँ थिएटर रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है। पृथ्वी थिएटर काफ़े भी वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ की आयरिश कॉफ़ी काफ़ी फेमस है। और अब मैं मिलने वाली हूँ जाह्नवी श्रीमांकर को, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और बाद में मैं पृथ्वी थिएटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। तो मिलते हैं जाह्नवी से। हाय जाह्नवी। हाय। પૃથ્વીમાં આ પ્લે કરવાનો સેમ બટ ડિફરન્ટ કેવો અનુભવ રહ્યો? બહુ જ અનોખો રહ્યો છે આ પ્લે સેમ બટ ડિફરન્ટ હવે 2 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે, અને ઇટ સ્ટાર્ટેડ એટ સ્ટુડિયો તમાશા, વિચ ઇઝ રન બાય તમાશા થિયેટર, અને એક નાનકડી ઇન્ટિમેટ સ્પેસ છે, પરફોર્મન્સ સ્પેસ, વેર યુઝ્યુઅલી માઇક સિસ્ટમ અમે વાપરીએ પણ બહુ જ મિનિમલ લેવલ પર રાખીને. સો દેર ઇઝ એન ઇઝ એટ ધી અધર વેન્યુઝ. હમણાં અમે લોકો બરેલી ફેસ્ટિવલમાં પરફોર્મ કરી આવ્યા, બરેલીના થિયેટર ફેસ્ટિવલમાં, જે વિન્ડમિયર થિયેટરમાં થતું હોય છે. ત્યાં તમાશા થિયેટરના 4 પ્લેસ થયા હતા, તો એમાંનું આ એક હતું. અને અત્યાર સુધી મોસ્ટલી જેટલી જગ્યાઓ પર અમે પરફોર્મ કર્યું છે, બનારસમાં, પછી બેંગ્લોરમાં, મનીપાલમાં, બધે જ અમે ઓડિટોરિયમ્સમાં કર્યું છે પરફોર્મમાં. સો એવરીવેર વી વુડ યુઝ અ લેપલ માઇક. પૃથ્વી થિયેટરમાં એ ડિફરન્સ છે બીજા ઘણા બધા મેજોરિટી વેન્યુઝ કરતાં, કે અહીંયા એમ્પ્લિફિકેશન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, સ્પીકર્સ, માઇક્રોફોન્સ નથી વપરાતા. ઇટ ઇઝ અ રૂલ. તો તમારે જેટલી સ્ટ્રેન્થ હોય, જેટલી એનર્જી હોય, એઝ અ પરફોર્મર, એઝ અ વોકલિસ્ટ, એઝ એન એક્ટર, યુ હેવ ટુ પુટ ઓલ યોર સ્ટ્રેન્થ so that the last benchers can also hear you just as clearly. પણ સાથે ડાયનામિક્સ પણ લાવવા એ બધું એ ચેલેન્જિંગ હોય છે. અને કયું આનો તમારે જે નાટક છે એનો સેન્ટ્રલ થીમ શું છે? બેસિકલી ઇટ સેઝ સેમ બટ ડિફરન્ટ. એમાં અમે 2 વ્યક્તિઓ છે, બંને મારી સાથે, મારા જે કો એક્ટર છે એમનું નામ છે કૈલાશ વાઘમારે. હી ઇઝ એન એક્ટર સિંગર અને હું સિંગર. તો અમારા બંનેના મ્યુઝિકલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ શું છે, અને ડિસ્પાઇટ ઓલ ધ contrast in our backgrounds, in our bringing up, in our social life, financial life, or whatever, political views, musicality, આ બધું જ ડિફરન્ટ છે.
બટ ધી આઈડિયા ઇઝ કે અમે બે આટલા ડાયવર્સ પરફોર્મર્સ પણ એક સ્ટેજ શેર કરી શકો છો. જે આપણે એકબીજાના ડિફરન્સીસને રિસ્પેક્ટ કરવાની વાત છે. ધેટ્સ સો નાઇસ. એટલે આ બહુ સરસ વસ્તુ છે કે ડિફરન્સ હોવા છતાં પણ યુ આર વન. ઓકે, કયું બેસ્ટ સોંગ તમારી દ્રષ્ટિએ છે? તમને કયું હૃદયથી કયું ગીત બહુ ગમે છે? એક જે મારી માટે બહુ ખાસ છે, આમાં હું ગાતી છું, એમાં હું મારા ગુરુજી કૌમુદીબેન મુંશની વાત કરું છું. ઓકે. અને એ ગીત મારી માટે બહુ જ ખાસ છે. એની એક લાઈન સંભળાવો. થિંક ઓફ આંટી ઈચ ટાઈમ આઈ સિંગ ધીસ. ધેટ્સ સો નાઇસ. ઘેરી ઘેરી આવે ગુઈયા કારી રે બદરિયા બુંદન પરત ગુહાર રે. થેન્ક યુ જાનવી, બહુ જ મજા આવી. અને આઈ વિશ બીજા દર્શકો જે જોઈ રહ્યા છે એ લોકો પણ આ નાટક જોશે જ. થેન્ક યુ, आई होप सो टू. या ओके, थैंक यू. अब फोटो के ज़रिए मैं पृथ्वी थिएटर की सैर कराती हूँ और थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताती हूँ. पृथ्वी थिएटर, जिनके नाम से उनका नामकरण हुआ, पृथ्वीराज कपूर, जो कपूर डायनेस्टी के पायोनियर माने जाते हैं, उनकी याद में ये थिएटर बनाया गया है. जिस दौर में पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, उस दौर में आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी. तब एक टूरिंग कंपनी की तरह पृथ्वी थिएटर की यूनिट ने पठान, दीवार, पैसा जैसे नाटकों का भारत भर में घूम घूम कर मंचन किया था. इन नाटकों से उस दौर में पृथ्वीराज ने सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक नैतिक मूल्यों का संदेश भी दिया, जो बहुत बड़ी बात थी. लेकिन पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि उनकी जो थिएटर कंपनी है, जो भारत भर में घूम घूम के नाटक करती है, उनको एक प्रचलित स्थान प्राप्त हो. तो इसी वजह से उन्होंने 1962 में बम्बई के जुहू एरिया में एक प्लॉट खरीदा. लेकिन 1972 में उनकी डेथ हो गई और इनके दौरान ये प्लॉट जो खरीदे था उसकी अवधि भी समाप्त हो गई थी और उनके परिवार को बिक्री के लिए सौंप दी गई थी. तो पृथ्वीराज कपूर के बेटे शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर कपूर ने ये प्लॉट खरीदा और अपने पिता का स्वप्न साकार किया. 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन हुआ. नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बेंजामिन गिलानी द्वारा अभिनीत और जीपी देशपांडे द्वारा लिखी गई उद्ध्वस्त धर्मशाला पृथ्वी का पहला नाटक था. इसके बाद इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा द्वारा एक राजनैतिक व्यंग बकरी भी प्रस्तुत किया गया, जो बाद में गुजराती में और कई भाषा में भी इसका मंचन हुआ था. गुजराती में निमेश देसाई ने किया था. तो ये 2 प्ले से पृथ्वी थिएटर का आरंभ हुआ था. पृथ्वी थिएटर में बाद में तो बहुत सारे प्लेस प्रस्तुत किए जाते हैं और मैंने भी काफ़ी ड्रामा यहाँ देखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती. और ये एक लाजवाब प्लेस है बम्बई का. तो अगर आप आइए बम्बई, जो मेरे दोस्त बम्बई में रहते हैं उनको तो वो मालूम है, पर बम्बई के बाहर रहने वाले दोस्तों के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन केस आप बम्बई आओ तो ये भी एक बेहतरीन जगह है जिसका एम्बियंस बहुत सुंदर है. और पृथ्वी कैफ़े भी वन ऑफ अ काइंड कैफ़े. पृथ्वी कैफ़े विथ इट्स ट्री, द थिएटर, द बेंचेस, द एडेड स्पेस अगेंस्ट द वॉल, द फेरी लाइट्स, द बल्ब्स, द पोस्टर्स एंड द बुक शॉप. दिस इज़ आर्ट, नॉट अ कैफ़े. इसलिए मुझे पृथ्वी कैफ़े भी बहुत पसंद है. यहाँ की आयरिश कॉफ़ी, इट इज़ वेरी फेमस. हॉट कॉफ़ी के अंदर विस्की मिलाई जाती है और बाद में क्रीम ऐड करके पिलाई जाती है. तो इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर then you can definitely have this Irish coffee at पृथ्वी कैफ़े. पृथ्वी कैफ़े के बिल्कुल सामने पृथ्वी अड्डा है और उसके बगल में कैफ़ी आज़मी साहब का घर था, जो आई फील लाइक टू टॉक टू द वॉल्स, क्योंकि उनके घर में तो कितनी महफिलें सजती होगी, कितने गाने बने होंगे.
तो वो भी एक बहुत मतलब नॉस्टैल्जिक जगह है हमारे लिए कि कैफ़ी हाज़मी साहब का घर भी उधर है, अभी भी है। वो वहाँ रहते तो कोई नहीं है, पर कभी कभी उसका उपयोग महफ़िलों के लिए किया जाता है। और पृथ्वी अड्डा, जिसका फ़ोटो ये स्लाइड में आप देखेंगे, उसके ऊपर अभी तो एक बिल्ली बैठी है, लेकिन यहाँ कभी कभी महफ़िलें होती है। हिंदी थिएटर के जो बहुत जाने माने कलाकार हैं लुबना सलीम एंड सलीम आरिफ साहब, वो हर मंगलवार को उर्दू महफ़िल भी रखते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है 1.5 साल से वो बंद है। पर यहाँ भी मैंने कई महफ़िलें अटेंड की है। सो मेरे लिए एक बहुत ही फेवरेट जगह है बम्बई की, एंड आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आज हमने पूरा पृथ्वी थिएटर का दौरा किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वर गुर्जरी। हम स्वर गुर्जरी के माध्यम से भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, थिएटर सबको पेश करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।